2018 سے ہماری جدوجہد جاری ہے. اس سے پہلے بھی انٹرنیشنل ویمنس ڈے پہ ہمیشہ ایونٹس ہوتے رہے, مارچز ہوتے رہے ہیں. بس 2018 سے ہم نے اس کا عورت مارچ نام دیا. عورت مارچ نہ تو کسی پولیٹیکل پارٹی سے جڑی ہوئی ہے, نہ کسی این جی او سے جڑی ہوئی ہے, اور نہ ہی کسی کمپنی سے جڑی ہوئی ہے, نہ ہی ہم ان سے فنڈنگ لیتے ہیں. ہمیشہ سوال رہتا ہے کسی سے فنڈنگ نہیں لیتے. ہماری فنڈنگ سورسز یہی ہیں کہ کیونکہ ہم اپنے آپ کو پولیٹیکل کام کے لیے تصور کرتے ہیں, تو جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, سپورٹرز ہیں, ان سے ہم انڈیویجول طور پر چندہ اکٹھا کر کے اپنی فنڈنگ کو بھی کرتے ہیں. آج ہمارا کیس لگا ہوا تھا جسٹس مزمل شبیر کے پاس صبح, خاور ممتاز بنام ڈی سی لاہور, جس میں ہم نے ڈی سی آفس سے جو ایک این او سی کا ریفیوزل نکلا تھا, اس کے اندر خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا ہوا تھا کہ کیونکہ آپ کو تھریٹ ہے جماعت اسلامی اور دیگر اور مذہبی تنظیموں سے, تو آپ کا مارچ نہیں ہو سکتا. اور ہم نے ناصر باغ میں اس سال کا این او سی موو کیا تھا. انہوں نے لکھا تھا آپ ناصر باغ میں مارچ نہیں کر سکتے, آپ لاہور پریس کلب نہیں جا سکتے, آپ ایجنٹن روڈ نہیں جا سکتے, آپ فیصل چوک نہیں جا سکتے, آپ مار روڈ پہ نہیں جا سکتے, آپ بتھمرا نہیں جا سکتے. پورے شہر سے ہمیں بات کرنے کی کوشش کی تھی. تو ہم نے اس آرڈر کو ہم نے چیلنج کیا. ویسے تو این او سی ایک ریکوائرمنٹ نہیں ہے جلوس نکالنے کی, فریڈم آف اسمبلی, فریڈم آف اسپیچ جو ہے این او سی سے اوپر ہے, لیکن اس سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے ساتھ ہم ون پیج پر ہو جاتے ہیں. ہم نے اس آرڈر کو چیلنج کیا. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی اس کی تاریخ میں پہلی بار جو خاتون سیکرٹری الیکٹ ہوئی ہیں صباحت رضوی, انہوں نے ہمیں ریپرزینٹ کیا ہے اس کیس میں. ساتھ ساتھ ان کے ذیشان ہاشمی تھے, عابد ساقی تھے, اصل جماعت تھے, اور آج پھر صبح مزمل شبیر کے پاس لگی ہوئی تھی. انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا اپنی پرسنل ریزنس کی وجہ سے. دوپہر کو ہمارا کیس لگا ہے جسٹس انوار حسین کا پاس. انہوں نے ابھی کے لیے نوٹسز کیے ہیں ایس پی صاحب کو اور ڈی سی آفس کو. کل ان کو کورٹ میں طلب کیا ہے اور ان کے ریمارکس کورٹ میں بہت پازیٹیو تھے. ہم نے بہت سارا کیس لا بھی ان کے ساتھ شیئر کیا. پاکستان بھر کی عدالتوں نے پچھلے کچھ سالوں میں عورت مارچ کے حق میں فیصلے دیے, ہم نے وہ بھی ان کے سامنے پریزنٹ کیے. ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ قانون اور کورٹس اس طرح فریڈم آف ایسوسی ایشن اور اسمبلی اور اسپیچ کو اپہولڈ کرتے ہیں. اب کل انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ دے گی, اور یہ ایک ایسا فیصلہ ہوگا جس میں واقعی فریڈم آف اسمبلی, فریڈم آف ایسوسی ایشن, ہمارے فنڈامنٹل رائٹس جو کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتے ہیں, اس کو اپہولڈ کیا جائے. مزید اگر سوالات ہوں گے عدالت سے ریلیٹڈ میں اینڈ پر لے لوں گی. ابھی میں ارم کاشف کو مائک دیتی ہوں جو کہ آپ کو ہمارے ڈیمانڈس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. اس دفعہ کا چارٹر آف ڈیمانڈ آپ کے ہاتھوں میں ہے, اور اگر آپ دیکھیں تو اس میں معاشرے کی اور انسانیت کی بھلائی ہے. تو ہم بھی صرف آپ سے یہی توقع کرتے ہیں کہ عورت کو عورت کے طور پر نہیں, انسان کے طور پر دیکھیں. 2023 میں عورت مارچ لاہور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے انتظامی بحرانوں پر تشویش کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے انٹرسیکشنل رد عمل کا مطالبہ کرتا ہے جس کے تحت تمام پالیسیوں اور سیاسی عمل کو متاثرہ افراد کی ضروریات کو دیکھ کر ترتیب کیا جائے. ہم مطالبہ کرتے ہیں موسمیاتی انصاف کا. قدرتی آفات کے خطرے سے دوچار کمیونٹیز کو مستقل ریلیف فراہم کیا جائے. بڑے پیمانے پر ترقیاتی منصوبوں پر سرمایہ لگانے کے بجائے موسمیاتی استحکام اور موسمیاتی تبدیلیوں کی روک تھام کے اقدامات کے لیے طویل مدتی مدد فراہم کی جائے. موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے پالیسیاں متاثرہ کمیونٹیز جیسے کہ مقامی کاشتکاروں اور ماہی گیروں کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے وضع کی جانی چاہیے. موسمیاتی تبدیلی اور دیگر اندرونی محرکات کی وجہ سے ہونے والی نقل مکانی سے ہنگامی بنیادوں پر نمٹنے کی ضرورت ہے. تمام بے گھر افراد بشمول 2022 کے اندرونات سیلاب سے متاثرہ افراد کو آئین پاکستان کی آرٹیکل 9 اور 38 کے تحت چھت فراہم کی جائے. ہم روتا جیسے ترقیاتی منصوبوں کی مذمت کرتے ہیں جو خوراک اور پانی کے بحران کو مزید سنگین کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی بے گھر کرنے کا سبب بن رہے ہیں. محنت کش طبقے کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والی آلودگی کو کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں. ان اقدامات میں ہمارے شہری رہن سہن کی تبدیلی, پبلک ٹرانسپورٹ کے نئے نظام کی تشکیل اور آلودگی کے ذمہ دار صنعتوں کو بھاری جرمانے شامل ہیں. اب بات کی جاتی ہے معاشی انصاف کی. اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ تمام شہریوں کو رسمی غیر رسمی معاوضے کے ساتھ
या बिला मुआवजा मजदूरी की तकरीर के बगैर बुनियादी उजरत और मुनासिब तनख्वाह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। हम मुतालबा करते हैं कि ख़वातीन की बिला मुआवजा की जाने वाली मशक्क़त को भी मुआवजे के एवज़ की जाने वाली मजदूरी के बराबर समझा जाए और आर्ज़ी बुनियादों पर किए गए काम के मुतालिक ज़ाब्ता तश्कील देने के साथ साथ समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को भी ज़्यादा लोगों तक फैलाया जाए। गरीब, दुश्मन इक़दामात और IMF नवाज पॉलिसियाँ जैसे कि निजकारी, महंगाई और बिलवास्ता टैक्सों जिनसे न सिर्फ आलमी सरमायादाराना निज़ाम को ही फ़ायदा हो सकता है, का बोझ गरीब और पसमानदा तबक़ात पर नहीं पड़ना चाहिए। सरकारी इदारों के बजट में की जाने वाली कटौतियों को फौरी तौर पर वापस किया जाए। HEC की तरफ से दिए जाने वाले स्कॉलरशिप्स को दोबारा बहाल किया जाए और म्यारी तालीमी, यूनिवर्सल हेल्थ केयर और सर्वाइवल सेंट्रिक वेलफेयर सिस्टम को लागू किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सनाया चौधरी है और यहाँ पे मैं ख्वाजा ज़रा कम्युनिटी ट्रांसजेंडर जो अफराद हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ और चूँकि मेरी बहनों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि उनके मुआवजे क्या हैं, हम लोग किस चीज़ के ऊपर हम लोग बात करते हैं और कोर्स से रिलेटेड जो चीज़ें बहुत अच्छे से उन्होंने इसको मेंशन की हैं। इसके साथ साथ चूँकि इंसानी हकूक़ और इन चीज़ों के ऊपर बात की गई है और जो कानून पास हुआ था 2018 में जिसका नाम था ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट 2018, उसमें हुकूमत की तरफ से हम लोगों के हकूक़ को देने का, मुहैया करने का पूरा उन्होंने कहा था कि हम आप लोगों को हर तरह से आप लोगों के हकूक़ देंगे, जिनमें जो मेन जो बेसिक चीज़ें हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, उसके साथ साथ विरासत में हक। अगर माशरे में कभी भी कहीं पे भी हमें कहीं ट्रैवल करना पड़े, हम लोग आराम से कहीं पे भी जा सकते हैं, आराम से कोई भी हमें हमारी जिन्स की वजह से, सिंह की वजह से हमें जो शिकार करना या तस्लील करना, उस चीज़ के ऊपर बात की गई, जॉब्स के ऊपर बात की गई। तो ये सारे जो बेसिक राइट्स हैं सिवाय इसके कि शादी के हकूक़ के ऊपर, इसके अलावा सारे वो हकूक़ जो कि मर्दों और औरतों के पास जिस तरह से हैं उस तरह से हम लोग को भी मिले सिवाय शादी के हकूक़ के। तो वो हकूक़ जो से हम लोग को उस तरह से चीज़ें नहीं मिली और शादी के जो हकूक़ हमें चाहिए भी नहीं है। वो जितने लोग जिस तरह खुश हैं वो सबको पता है कि कितनी उसमें है, हम लोगों को उसमें नहीं चाहते। मेरा नाम फातिमा रज़ाक है, औरत मार्च की रज़ाकार हूँ। औरत मार्च 2023 की डिमांड्स आप सबके सामने हैं। इस दफ़ा का हमारा फोकस माहौलियाती इंसाफ, सैलाब के बाद जो कि खुल के सामने आ गया है कि किस तरह से औरतें उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई हैं। उसके अलावा मुआशी इंसाफ जो बहुत ज़रूरी है और औरतों को और पूरे समाज को मुतासिर कर रहा है। और आखिर में सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़ और हम सब की सलामती को यकीनी बनाया जाए। वायलेंस के रेट्स आपके सामने हैं, ख्वाजा सिरा अफराद के ऊपर तशद्दुद की कहानियाँ आपके सामने हैं, आप लोग ही रिपोर्ट करते हैं उसको। इस दफ़ा 2023 में हम मीडिया पासेस नहीं जारी करेंगे क्योंकि हमारे मुताबिक हमारा ये ख्याल है कि अगर मीडिया के इदारे अपना कार्ड जो आपको प्रेस क्लब से या आपके इदारे की तरफ से दिया जाता है, आप वो साथ लेके आएँ। जो रज़ाकार या जो भी शुरका है मार्च के जो आपसे बात करना चाहते हैं, उनको आप अपना कार्ड दिखाइए और वो उसी तरह से आपको ऑथेंटिकेट करेंगे। हर साल मार्च में हमें एक बहुत बड़ा जो मसला रहता है वो यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के या फिर इस तरह के इदारे जिनको वेरीफाई नहीं किया जा सकता, उनकी तरफ से एक पूरी तस्दीकी मुहिम का है जहाँ पर वो ख़वातीन के कंसेंट के बगैर उनकी ना सिर्फ तस्वीर बनाते हैं, नाजेबा तरीके से मुख्तलिफ एंगल से उनकी तस्वीरें बनाते हैं, गलत क्लिकबेट के ज़रिए, गलत हैशटैग्स और कैप्शंस के ज़रिए यूट्यूब के ऊपर डालते हैं। और अगर हम वीडियो खोल के देखें तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो एक सेंसेशनलिज्म की जो फिज़ा कायम की जाती है जिससे औरतों के असल हकूक़ की मुहिम को जितना नुकसान पहुंचा है हमारे मुताबिक उतना पहले कभी नहीं पहुंचा, क्योंकि ये एक अनआइडेंटिफाइड थ्रेट है। इसमें कई ख़वातीन को बहुत
फोटो शॉप किया जाता है उनके पोस्टर्स को, इसका बैकलैश हमें इस तरह से नज़र आता है कि बाद में पूरे मुआशरे को ये लगता है कि शायद औरत मार्च की ये डिमांड थी, और हमने बहुत से पोस्टर्स, हमने इसके ऊपर कई मैकेनिज़म्स बनाए हैं। एक तो ये कि हम हर पोस्टर की कोशिश करते हैं हमारे रज़ाकार की तस्वीर लें, ताकि जब लोग फोटोशॉप करें तो हम दिखा सकें कि ये असल पोस्टर था। आपसे भी गुजारिश करेंगे कि आप पोस्टर्स की तस्वीर लें। दूसरा ये कि खुदारा ख़वातीन से इंटरव्यू करने के लिए आप लोग जाते हैं, आपका हक है कि आप हर एक से बात करें, लेकिन आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। कई ख़वातीन अगर आपको मना करती हैं या वो नहीं कंफर्टेबल, नहीं बोलना चाहती, हर बंदा माइक के सामने उस तरह से नहीं बोल सकता, कईयों को अपनी प्राइवेसी का मसला है, स्टूडेंट्स हैं, घरों से इजाज़त नहीं है, या फिर ऐसी ख़वातीन जिनको किसी भी वजह से वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाह रही, मीडिया से नहीं बात करना चाह रही, तो आप उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें और उनका इंटरव्यू मत करें। बहुत से हमने पिछली दफ़ा भी वीडियोस देखी हैं जहाँ पर लोग पीछे आते हैं, बाकायदा हरास करते हैं। सो इसके ऊपर आई थिंक हमें पता है कि ये आपके अंदर भी एक डिबेट है, हमें भी बहुत बड़ा मसला यूट्यूबर्स को कंट्रोल या रोकने का है। हमने पिछली दफ़ा मीडिया पासेस जारी किए थे, हमें लगता है कि वो भी उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि वो भी छीन लेते हैं एक दूसरे से, और फिर भी जो हिरासा करना है मार्चर्स को वो फिर भी जारी रहता है। बहुत से मार्चर्स, बहुत सी ख़वातीन पढ़ी लिखी नहीं हैं या वो नहीं उस तरह से अपना दिफा कर सकती, तो आप सबसे गुजारिश है कि जहाँ पर आप ही देखें कि किसी साथी या कोई कैमरा पकड़ के किसी की तस्दीक कर रहा है, किसी खातून को हिरासा कर रहा है, तो हम सबकी एज अ मुआशरा, एज मीडिया कम्युनिटी, जर्नलिस्ट कम्युनिटी, हमारी भी जिम्मेदारी है और हमारे रज़ाकार भी इसके ऊपर काम करेंगे। आपसे भी गुजारिश है कि इस दफ़ा ताउन करें। जो कई दफ़ा अगेन लड़ाई की सिचुएशन आती है उससे रोकने में, देखिए हमारा बेसिक मकसद यही है कि हम आपको भी फैसिलिटेट करें, आप हमें भी फैसिलिटेट करें। सो इसमें कोई जंग की सूरत हाल तो नहीं है। आप मार्च को कवर करने के लिए आए, एक कंसेंट लेके मार्चर्स का आप उनकी कवरेज करें। हम भी इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितना आपको हमारी तरफ से मटीरियल चाहिए, जो डिमांड्स चाहिए, कोर्ट के ऊपर जो अपडेट्स चाहिए, हम आपको मुहैया करते रहेंगे। अगर कोई और आपके सवाल हैं तो ज़रूर उन्हें सामने रखिए। इससे पहले हम मार्च पे बात करें, अच्छा सॉरी मैं बस आखिरी चीज़ एक कर दूँ और दूसरा प्लीज़ वन बाय वन कीजिएगा। आपकी एक चीज़ सॉरी मीडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, इस दफ़ा मार्च बाग में हो रहा है, ना सिर्फ बाग में। सो बाग में बागी तो होंगे, लेकिन TNC वैन्स अलाउड नहीं है, ये हमारी तरफ से नहीं, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की तरफ से आप नहीं ला सकते। जो भी उसका ख्याल रखिएगा, वो बहुत अगेन हमेशा हमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है, उसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते। पुलिस या जो भी सिक्योरिटी के इदारे हैं उनकी तरफ से ममानियत है, वो नहीं आगे अगर जाने देंगे, तो वो काइंडली आप ख्याल रखिएगा। बहुत से कानून बने हुए हैं, आपको पता है कि उसके अलावा भी बहुत से कानून मौजूद हैं पाकिस्तान में और जो फॉलो नहीं होते। लेकिन बात यह है कि औरत मार्च का बहुत बड़ा मकसद जो है वो शऊर उजागर करना है, ठीक है। कवानीन आपको कभी भी चीज़ों से नहीं रोक सकते, फिर भी आपको माशरे में नज़र आता है कि मर्डर होता है, रेप होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, उनके भी कवानीन मौजूद हैं। तो क्या मर्डर के कवानीन होने की वजह से मर्डर खत्म हो गया या अनफॉर्चुनेटली रेप खत्म हो गया? नहीं हुआ। इसलिए लोगों के दिमाग को एक सोच सुझाना, उनके शऊर को उजागर करना, ये एक बहुत बड़ा मकसद है औरत मार्च का। जो आपको प्ले कार्ड नजर आते हैं जिन पे आपको एतराज़ होता है, नहीं होता, वो उन खवातीन के लिव्ड मसाइल हैं, एवरीडे रोज़ाना के मसाइल हैं
اور وہ عورت مارچ کا جو ہے مین مقصد ہے آپ تک پہنچانا. سو اگر کوئی خواتین اپنے گھر سے نہیں بتا کے آ سکتی, یہی ایگزیکٹ مقصد ہے مارچ کا, کہ وہ چیزیں جو اپنے آپ کو گھر میں ایکسپریس نہیں کر سکتی, ان کو بالغ ہونے کے باوجود, بالغ ہونے سے پہلے ان کی منگنیاں شادیاں تو ہو سکتی ہیں, لیکن وہ مارچ میں آ کے اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتی. اس وجہ سے ہمیں ان خواتین کا خیال ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ تمام خواتین آئیں جن کو گھر سے نہیں اجازت, لیکن وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہتی ہیں.